Nobody has filed the reply till date. क्या मैटर क्या है? Matter is, my lord, the respondent number 9 is Mr. B.L. Mishra. जी He is a retired SDM. जी Then he has become an advocate, जी and then he has become a whistleblower and जी also chief editor of a newspaper. जी He, my lord, has filed as many as 50 PILs, my lord, in the Honorable High Court. जी And if my lord would see P1, page 18, जी the Honorable High Court has said, my lord, that he's formed a cartel, and there are, my lord, I'll read page 19 for a moment. Yes. The order passed by the division bench. The state has filed the reply in that case, my lord. He filed a PIL against. ठीक है, come to the point. My lord. There are details of 21 cases against the petitioner. कहाँ पढ़ रहा है? ये पैरा 2 है, जी। पेज 19. ये जो रिस्पोंडेंट पहले नंबर तो आप अपना लोकस बताइए, who are you? हुआ यूं सर कि ये जो नहीं, पिटीशन who are you नहीं, who are you? हाँ। मैंने अंग्रेजी में सवाल पूछा, who मतलब- are you नहीं है उसका उत्तर। yes, my lord, I am also one of the complainant जी against Mr. Mishra. जी। He has, my lord, made several complaints against us, my lord. What is your locus? I am a colonizer. हाँ, जाइए Now- प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए। And You in want to private settle your company, I am private dispute? seeking an inquiry against the officers who have passed. My lord, may kindly see, after hearing me, my lord, the honorable court has issued notices to the हाँ respondent. ठीक है, कोर्ट में have been We very have kind paid to the you. PF. He has not appeared. Nobody has appeared. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है that My lord, heard on question of admission, issue notice to the respondents on Yes. payment of process fee. Yes, my lord. There is absolutely no whisper as to on what material notices were issued. My lord. So you will have to The satisfy material me. were in the petition. You will have to satisfy me My lord. that what is your locus and how relief can be granted to you. My lord. I am. I'll not permit any blackmailing in my court. No, no. Let me be very clear. नहीं, let me be very clear. Who's blackmailing? हाँ, चलिए I am not blackmailing anybody. आप बताइएगा ना, आपका लोकस समझाइएगा। Yes. My lord, may see. कहाँ लोकस कहाँ लिखा है आपने? पैराग्राफ पढ़िएगा लोकस का पहले। In fact, my lord, I have filed the FIR against this respondent number 9. हाँ तो pursue that FIR. That is being going on in the court of law. बस फिर That is P2. हाँ Regarding, my lord, that he has blackmailed me for the extraction of a plot. जी। Then, my lord, what has happened? कहाँ है वो FIR? This is P2. P2 पढ़िएगा। Page 20. जी सूचनाकर्ता शैलेंद्र सिंह। हाँ वो ठीक है। उसके बाद विषय BL मिश्रा, उसके पुत्र मधुर मिश्रा, नीलेश दुबे द्वारा एक राय होकर प्रार्थी की बेशकीमती भूमि को विवादित करने का भय दिखाकर 100 बाई 100 वर्ग फीट प्लॉट का बहुमूल्य लेने की बदनीयत। क्या हुआ इस केस में? तो 15 की एप्लीकेशन है ना? सर इनके ये जो है अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं। हाँ। और इनके कारण कोई भी अधिकारी, खुद रेवेन्यू ऑफिसर है रिटायर्ड, हाँ। कोई एक्शन नहीं लेता है। अच्छा। और मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं कि इन्होंने हमसे ही हमारे एंसेस्ट्रल से प्लॉट लिया जी। खसरा नंबर 589। जी। अब इन्होंने क्या करा सर कि 589 में जब कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिए कि 589 को भी सरकारी, इन्हीं की शिकायत पे ये सारी जमीनों को सरकारी घोषित किया जाए। जी। मैं सर वो पेपर पढ़ देता हूँ। कमिश्नर का ऑर्डर है, पेज 112 देख लें सर। जी। पेज 112 से। तो ये किस तरह से अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। जी जी। निगरानीकर्ता के अनुसार अनावेदक BL मिश्रा ने खसरा नंबर 589, पैरा 2 पढ़ रहा हूं सर जी, पेज 112 जी। निगरानीकर्ता के अनुसार अनावेदक BL मिश्रा ने खसरा नंबर 589 में से ही जमीन हासिल कर अपना मकान बनाया है। नस्ती पर उपलब्ध विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि लक्ष्मण सिंह ने खसरा नंबर 589 का अंश भाग 70/60 फुट का विक्रय रजिस्टर्ड बयानामा 30/5/70 द्वारा राजेश कुमार बाबूजी खरे को विक्रय किया। तत्पश्चात राजेश कुमार तनय बाबूजी खरे सुभाष श्रीमती जानकी मिश्रा पुत्री प्यारेलाल नायक, जानकी मिश्रा इनकी वाइफ, जी।
क्रय भूमि को जानकी मिश्रा ने अपने पति बीएल मिश्रा को वसीयत की। श्रीमती जानकी मिश्रा की मृत्यु पश्चात वसीयत के आधार पर बीएल मिश्रा को भूमि खसरा वर्ष 1819 में 589/घ, जो इनका मकान है वो 589/घ हो गया, जी छतरपुर के नाम दर्ज हुआ। कैफियत के कॉलम 12 में कैफियत दर्ज है कि न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार के राजस्व प्रकरण सो एंड सो में आवेदक पति के नाम नामांतरण स्वीकृत। इस प्रकार खसरा नंबर 589 घ, जो कि 589 का भाग है, खसरा नंबर 589 सन 58-59 में लक्ष्मण सिंह के भूमि स्वामित्व की भूमि थी। मुझे आवेदक गण के इस तर्क में बल दिखाई देता है कि खसरा नंबर 601/1 के अंशधारकों और खसरा नंबर 589 के भूमि के अंशधारों के भूमि धारण करने के स्रोत एक से हैं, अर्थात लक्ष्मण सिंह से ही हैं। निगरानीकर्ता ने भूमि नंबर 601/1, जो लक्ष्मण सिंह के भूमि स्वामी हक की भूमि थी, के अंश भाग लक्ष्मीबाई नंदराम को हस्ताक्षर करी। ये पूरा इन्होंने बताया है। अतः करके अल्टीमेटली मानो निगरानी अंशतः स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर छतरपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विधि वह प्रक्रिया खसरा नंबर 600 व उसके अंश भागों पर प्रभावित होगी, वही प्रक्रिया 589 उसके अंश भागों पर प्रभावित होगी। इसके बाद सर इन्होंने एक रिव्यू लगाया इसी ऑर्डर के खिलाफ कि 589 के खिलाफ आप कार्रवाई करें पर 589 घ के खिलाफ ना करें। जी ये रिव्यू देख लें सर, 114 आप तो कह रहे थे अथॉरिटीज इनके प्रभाव में है, ये मैं अपर आयुक्त ने इनके खिलाफ ऑर्डर पारित किया है। वो है सर, उसको रिकॉल कर लिया। अच्छा, और ये रिव्यू की लैंग्वेज पढ़ लें सर। हाँ। मैं रिव्यू की लैंग्वेज उसके आपको, खिलाफ आप आए थे क्या एमपी में? जी सर, मिसलिनियस पिटीशन लगाई थी क्या आपने उसके खिलाफ? नहीं सर इसमें, ऑर्डर ऑफ रिकॉल है हाँ एडिशनल कमिश्नर का, इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? सर वो रिकॉल के खिलाफ जो ये पिटिशनर नंबर 2 है, ही हैज गॉन टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाँ ठीक है, वो है सर। हाँ। इसके बाद क्या क्या हुआ हुआ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में? सर, इसकी लैंग्वेज देख लें जो बीएल मिश्रा जी के, वी आर नॉट देयर, माय लॉर्ड। यू कम टू योर रिलीफ क्लॉज। जी, मेरी रिलीफ तो कुछ दूसरी है सर, मैं इसमें कुछ और चीज आपको, नहीं तो जो रिलीफ क्लॉज है उसी के तारतम्य में पढ़िए। मैं बता दिस इज क्रिमिनल दिस इज रिट पिटीशन क्रिमिनल, यस माय लॉर्ड। कम टू योर रिलीफ क्लॉज। हाँ मैं सर रिलीफ क्लॉज पे भी आ रहा हूँ। मैं इनके जो पहले उस पे आ जाइए, उसके बाद में आगे उसी के जी लाइट में आगे को आपको जो कहना है कहिएगा। माय लॉर्ड में सी द रिलीफ क्लॉज जी, that this honorable court may kindly be pleased to issue appropriate writ order direction directing the respondent number 2 SP EOW to inquire the conduct and misuse of power by respondent number 3 to 8 and after inquire register an FIR and prosecute them in the court of law for appropriate offense. जी, That this honorable court may kindly be pleased to issue appropriate writ order direction directing the respondent number 3 to take appropriate action in respect of khasra number 589/4 of village Bagota and pass an speaking order on the representation of the petitioner and also to the remove construction from government land situated from plot number 589/4 and Nala encroached by BL Mishra, as also to remove the construction illegally done by him on खसरा नंबर 589/4 ऑफ विलेज। कहाँ है ये 580? ये मैं बता की एंट्री, ये मैं बता रहा हूँ जी सर। P21 देख लें सर, पेज 94, क्योंकि हमारी दो रिलीफ है सर कि एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर किस तरह से इसको फेवर कर रहे हैं, नंबर 2 इन्होंने क्या करा। ये 94 पे आइए। हाँ ये सर इनकी प्रीवियस सेल डीड है, इससे आई एम नॉट कंसर्न। हाँ Once इसमें you say that he has encroached upon वही बता रहा हूँ, 589/4, वही बता then please show me वही that बता this land is recorded as a government land. मैं नहीं खसरा सर, बताइए पहले। मैंने सर मेरी रिलीफ है कि इसने जो बगल की रोड बंद कर दी है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं वो आप मेरी रिलीफ है ना सर, इस पे देख पढ़िएगा। ये पेज 95 देखें सर। नहीं पहले 7.2 दोबारा पढ़ लीजिए। जी आपने सर। ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा है कि रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ। आप, you will not succeed if you will deviate, you will not succeed. नो आई एम नॉट डेविएटिंग मैम, प्लीज आई पढ़िए विल 7.2 दोबारा पढ़िए, हाँ। बताइए। pass an speaking order on the representations of the petitioner as also remove the construction from the government land। तो you are required to show, this is what I am asking you। मैं बता रहा हूँ, 589/4 जो है सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है, इतना नहीं, दिखाइए आप। मैं बता रहा हूँ। एंड नाला encroached by BL मिश्रा, तो दिखाइए ना। मैं बता रहा हूँ। पेज 95 देखें सर, हाँ, ये नक्शा देखें सर। उत्तर में इनकी जमीन जो थी 60 फीट थी और छतरपुर रोड पे ये देखें सर,
पेज 95 पे जो इनकी जिस रजिस्ट्री से नहीं नहीं, आई विल नॉट सी ऑल दिस। माय लॉर्ड आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। इन्होंने नक्शा बदल दिया। नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है, उसके लिए आप रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाइए प्लीज। हाँ। You are required to show that this land contained in 589/4 is a government land. Show me a Khasra entry that it is registered as a government land. It is not a government land, my lord. Then why you are writing this? You have mentioned it. मैं वो रिव्यू तो Construction इसीलिए on the आपको बता रहा हूँ। government land situated from the plot 589/4 and जी ये सर रिव्यू का ऑर्डर देख नहीं नहीं, I will not go into all this. We are Because not in- sitting here in appeal. माय लॉर्ड मैं आप kindly no, you satisfy me on the touchstone of the queries which are put to you by the court. my lord ये दिखाइए आपने, क्योंकि कहा है that he has made a construction from on the government land situated on plot number 589 सर उसके लिए पेज 95 देख 95 बताइए। सर 95 पे जो इन्होंने इनकी प्रीवियस रजिस्ट्री थी उस पे हाईवे पे इनका एरिया था 60 फुट और प्लॉट की चौड़ाई थी, गहराई 70 फुट थी, जिसके उत्तर में नाला था। कहाँ लिखा है वो? ये देखें सर पेज उत्तर में 95 नाला तो अभी भी लिखा हुआ है पेज 95। मैं वही बता रहा हूँ आपको सर, हाईवे पे 60 है, गहराई 70 है। अब जो जिस रजिस्ट्री से इन्होंने परचेज किया, जो इन्होंने मैनिपुलेट किया, वो देख लें सर पेज नंबर 104 पे। हाईवे पे 70 फुट कर दिया इन्होंने। ये 104 रजिस्ट्री है क्या? हाँ इनकी रजिस्ट्री है जिसको इन्होंने मैनिपुलेट, रजिस्ट्री चलिए। दोनों रजिस्ट्री लगाई मैंने। प्रीवियस रजिस्ट्री में हाईवे पे 60 था और गहराई 70 थी। जाइए इस रजिस्ट्री का कैंसिलेशन का आवेदन लगाइए। सर हम तो शिकायत कर रहे हैं, नोबडी इज टेकिंग एक्शन। ठीक है अब ये देखे सर, जी। ये इन्होंने इसकी चौड़ाई 60 फुट करके और 10 फुट जो जमीन पीछे के लोगों का रास्ता था वो बंद करके रखा हुआ है। कहाँ लिखा है रास्ता? ये एडमिटेडली है, ये देखें सर, Admitted- ये जो 10 फुट इन्होंने बढ़ाया है, we are entering into that arena which is not covered. माय लॉर्ड में सी वी हैव मेड सेवरल, हमारे रिप्रेजेंटेशंस पे तो ऑर्डर करें सर। नहीं, अब ये रिव्यू का ऑर्डर देख लें सर आप। रिव्यू में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑलरेडी चैलेंज है, बट रिव्यू बोर्ड ऑफ पे रेवेन्यू से ऑर्डर आ जाए तब आइएगा यहाँ पर। माय लॉर्ड रिव्यू के ऑर्डर में द अथॉरिटी हैज रिव्यूड द ऑर्डर सेइंग दैट 589 इज अ गवर्नमेंट लैंड। ईओडब्ल्यू का जुरिस्डिक्शन बताइए पहले, रिलीफ नंबर 1 ईओडब्ल्यू का क्या जुरिस्डिक्शन होता है? बिकॉज दीज, अब ये देख लें सर, ईओडब्ल्यू का जुरिस्डिक्शन बता देता हूँ। जी माय लॉर्ड में सी दिस ऑर्डर डेटेड पास्ड बाय द 145 145 जी दिस इज ऑर्डर डेटेड 30/12/2019। जी ये रिस्पोंडेंट नंबर 9 की शिकायत पे जी। ये रीडेबल ही नहीं है, पेज 147 रीडेबल नहीं है। 149 बोल रहा हूँ सर, 147 की टाइप कॉपी फाइल करिए सर। कहाँ फाइल की है आपने? आपके ऊपर जो रजिस्ट्री इतनी मेहरबानी दिखा रही है उनकी जांच हो जाएगी सर एंड दे मे लूज देयर जॉब। my lord, but since there was no हाँ हाँ, वो तो default, समझ में आ रहा है ना। तो तो- ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी तो छूट जाएगी, कहीं उनकी जांच हो जाएगी, 1-2 की नौकरी चली जाएगी। now my lord, what has happened? नहीं, 147 इज नॉट रीडेबल। My lord, I'll file the type copy. नो 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 नो, यू फिनिश इट टुडे। Finish it. आप कन्विंस करिए मेरे को। आप Now this officer, लोकस बताइए। my lord, I have नहीं, अरे भाई 489/4 में आपका क्या लोकस है? हुआ यू? my lord, we were the आपका- owner, ancestral, my grandfather's land is this. That was sold in favor of some Khare, and then that Khare sold it in favor. Yes. So- Now my lord, may see this 145. By this order, the SDM has declared all the land government land, my lord. ठीक है Now this order was challenged before the Honorable High Court. जी। Up to the Supreme Court, my lord, we have succeeded. बताइए, you were party to this? I am party, my lord. My uncles, these lands belong to my family, my lord. नो नो नो, इतना वेग जो आप बहस करते हैं ना, फैमिली को कभी जिसकी जिसके पक्ष में जमीन है वो आए। आपका क्या लोकस I है? am, my lord, may see my FIR. We are the owners. We are the owners, my lord, and कहाँ we लिखा have है lodged आपकी the FIR. पढ़िएगा एफआईआर में। पढ़ देता हूँ। P2, page 21.
हाँ पढ़िए, T2 पेज 22। माल क्या लिखा है आपने इस FIR में? आवेदक शैलेंद्र सिंह पिता रामप्रसाद सिंह। नाउ माय लॉर्ड में सी जमीन का खसरा नंबर कहाँ लिखा है? जो आप बोल रहे हैं 489/4 आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कहाँ लिखा है FIR में जमीन का खसरा नंबर? in fact my lord may see my father's name is Ramprasad Singh. अरे, we are not concerned with your father's name. I am concerned with you claim that land to be your own, where you have mentioned that it is your land which has been encroached by the private respondent, and how it will give rise to a case My lord, for our lands are registration of FI. situated at the back of his house. कहाँ लिखा है इसमें? खसरा नंबर आपने दिया ही नहीं है। Khasra number, my lord may see everywhere it is mentioned that Lakshman Singh is FIR में my पढ़िएगा जरा खसरा नंबर। FIR में नहीं दिया है सर। नहीं दिया है ना? चलिए, अब आप बताइए, आप इसको विड्रॉ करके अल्टरनेट रेमेडी अवेल करना चाहेंगे कि इसको जो है मेरिट पे खारिज करना है? My lord, we what my submission is. You have two options, either to withdraw it and avail remedy before the competent authority, or should I dismiss it on merits? My lord, I'll seek the instruction. It may be taken up at 2:30. हाँ, ठीक है, 2:15 minutes.